Celebrities BoroPlus 10th Gold Awards took place last night in Mumbai, and the venue of the event was nothing else but Film City itself, and the ceremony was a star-studded one. Well, yes, many TV celebrities graced the event's red carpet with their presence, and here's a glimpse of who all were spotted at this big and shimmery night. Also, these celebrities interacted with the media. While some of them expressed their opinion about GST, some spoke about their look, outfit, nomination and a lot more. Take a look at what they shared. गोल्ड अवार्ड्स मैं पूरे साल में एक ही अवार्ड शो हमेशा होस्ट करता हूँ एंड वो गोल्ड अवार्ड्स रहता है. दिस इज़ गोइंग टू बी माय थर्ड कंसेक्यूटिव ईयर जहाँ पर मैं होस्ट कर रहा हूँ एंड आज भी करने वाला हूँ. पिछले 2 साल मैंने गौहर खान के साथ किया था. दिस टाइम आई एम होस्टिंग विद भारती सिंह. सो बहुत मज़ा आने वाला है यार. 10th year of Gold Awards, विकास कलंत्री ने एक डेकेड पूरा कर लिया है इस इंडस्ट्री में as the maker of Gold Awards. So I think and he's a very dear friend, so I really wish him all the best. और मैं चाहता हूँ कि 10 साल 100 साल में बदलें और आने वाली कितनी सारी पीढ़ियाँ Gold Awards को enjoy करती रहे. And I'm really looking forward because काफ़ी सारे दोस्त हैं. I'm performing myself. I'm nominated. तो it's a very exciting evening for me. So yeah. खतरों की खिलाड़ी was an outstanding experience. वाही अंदर ही खड़ा हुआ है, वो रेड कार्पेट होस्ट कर रहा है. आज भी हम दोनों की खींचताई चलेगी और आई थिंक वो पूरे शो में हमने ये किया है. पूरे शो में एक दूसरे की खींची है, मस्तियाँ की है. मैंने, रवि, वाही ने, आप सबने इंस्टाग्राम पे देख ही लिया होगा कि हम लोग क्या कर रहे थे पिछले 1-1.5 महीना. लोगों को लग रहा होगा कि हम सिर्फ मस्ती करने गए थे. जी नहीं, काफ़ी डिफिकल्टीज है. शो बहुत मुश्किल था हम लोगों के लिए, बट बिकॉज हम सब लोग साथ में थे तो इट वाज आई थिंक वन ऑफ माई बेस्ट एक्सपीरियंसेस. ऐसा था कि छुट्टी पे थे हम 3 दोस्त. वैसा I'm expecting to be entertained. I've been associated with it for a few years as well, and it's always, it's different. It's something that everyone likes to watch, and it's on Z. I've been associated with them also in the past, and all in all, a friend, my closest friend, one of my closest friends, she's performing and she's also nominated, so I hope she wins. Exciting. I start shooting on the 15th of August, but for which I'm shooting tomorrow. We're shooting the first look tomorrow. That's because they want to announce it soon, and I think they'll announce it by the end of the month. अवार्ड्स एक मौका होता है मेरे लिए जहाँ पर मैं अपने दोस्तों से मिल पाती हूँ. शूटिंग स्केड्यूल्स इतने हेक्टिक होते हैं that we don't get time to meet each other. So I'm really looking forward to have a great time and I'm performing. My award is that I'm dancing on stage. Yeah. I want to take the gold back home. So we have 4 of the nominations, if I'm not wrong. Because 2, I know that I'm also nominated in Best Actor Female and Fit Actor Female, and we have Negative and I think Male and Female. So and Best Actor Male, of course. I am hosting the red carpet, so I'm hoping कि बहुत सारे लोग बहुत सारी अच्छी बातें करेंगे और हमें अच्छा कंटेंट देंगे. तो बेसिकली जो आप लोग कर रहे हैं मैं वही होप कर रही हूँ कि आज मुझे भी अच्छा कंटेंट मिले. एंड आई एम नॉमिनेटेड. मेरे शो से 4 नॉमिनेशंस हैं, तो आई होप कि हम जीते अवार्ड्स. माई आउटफिट इज़ बाय स्वप्निल शिंदे. स्वप्निल शिंदे ने डिज़ाइन किया आउटफिट एंड आई थिंक ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट for red carpet and gowns, and I'm very very privileged and happy that I'm wearing his creation. देखिए, हाँ, गोल्ड अवार्ड की थीम को मैं पूरा एकदम जड़ के आई हूँ. मैं खुद ही गोल्डन अवार्ड बन के आई हूँ. सो दैट इज़ इट. आई एम द गोल्डन गर्ल ऑफ द नाइट. थैंक यू वेरी मच. मैंने मीडिया को बताया नहीं था क्योंकि मेरा दोनों बेबीज जो हैं वो घर नहीं आए थे. एक ही बेबी घर पे आया हुआ है. तो द सेकेंड बेबी इज़ गोना कम होम. तो फिर मैं
हम भी प्रॉपर सेलिब्रेशन करेंगे और फिर फोटोग्राफ भी भेजेंगे आप सब लोगों को। इंडिया बनेगा मंच ख़त्म करना है, मुझे भागना है, अभी बगल में शूटिंग चल रही है, तो मैं उसके लिए भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हाँ, एक्साइटमेंट भी है, बहुत घबराहट भी हो रही है क्योंकि नया कुछ कर रहे हैं, नई टीम है, नया परिवार है तो जब नई फैमिली होती है तो ज़्यादा घबराहट होती है, तो अभी घबराहट बहुत हो रही है। और आज बहुत एक्साइटमेंट है मुझे, मैं देख नहीं पाऊँगा, आरती आज परफॉर्म कर रही है गोल्ड अवार्ड्स में। मैं इनका परफॉर्मेंस देखने के लिए आने वाला था, लेकिन वही प्रॉब्लम, इंडिया बनेगा मंच बगल में सेट लगा है मेरा, अब स्टूडियो में आ गए हम लोग, तो प्रोडक्शन मुझे छोड़ नहीं रहा है, तो मैं सिर्फ आरती के लिए आया। मैंने चलो आप सब लोगों को, हम लोग हमेशा कम मिलते हैं, मैं या तो कश्मीरा के साथ होता हूँ और अब बच्चे भी हैं हाँ, तो इसको मैंने बोला आरती मैं इसके लिए आ जाऊँगा आज, बट मैं परफॉर्मेंस नहीं देख पाऊँगा, इसमें कमाल का परफॉर्मेंस आज कर रही है एंड शी इज नॉमिनेटेड ऑल्सो। अगर अवार्ड मिल गया तो फिर भाग कर आऊँगा मैं हांगकांग में था और मुझे कोई 3000 मैसेज हैं जो अभी भी मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे सबके कॉन्ग्रेचुलेशंस के मैसेज आ रहे हैं, जितने दोस्त हैं, कलीग्स हैं, एक्टर्स हैं, वो सब खुश हैं और सब घर पे आना चाहते हैं। अब देखा वही चक्कर था, मैं चाहता था दोनों घर पे हों बेबीज़, तो घर पे सबको मैं बुलाऊं, तो अभी एक ही बेबी है घर पे, दूसरा जैसे ही आ जाएगा तो इट्स गोना बी अ बिग सेलिब्रेशन। फिर मैं आपको बताऊंगा, उनके नाम भी बड़े अच्छे हमने रखे हुए हैं। एक्चुअली ये 10th गोल्ड अवार्ड्स है, बहुत ही स्पेशल है विकास के लिए, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टू कांग्रेचुलेट हिम एंड ऑल्सो ये मेरा सेकंड गोल्ड अवार्ड्स है। लास्ट ईयर मुझे बेस्ट मेन लीड डेब्यू मिला भी था, तो आई एम एक्साइटेड, देखते हैं कि आज क्या होगा। हाय, हाउ आर यू? So let's see के अंदर क्या होता है। I am super excited. This is my third Gold Awards and it's very special because this was the first award which me and Rohan had attended together last year. So it's very special to us and this is the 10th Gold Awards, so really looking forward to it. And yeah, I'm sure we're going to have a good time. बस सबसे पहले तो आज 10वां साल है गोल्ड अवार्ड का, तो सबसे पहले उनको बहुत बहुत बधाई हो। विकास जी अकेले जूझ रहे हैं, एक अवार्ड फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करना, उसका पूरी तरह से मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है और पिछले 10 साल से वो लगातार करते आ रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई हो। हर साल जब से तारक मेहता का उल्टा चश्मा शुरू हुआ है मैं नॉमिनेट हुआ हूँ और लगभग शायद अगर मेरी याददाश्त कमज़ोर ना हो तो मुझे गोल्ड अवार्ड मिला है। आशा करता हूँ इस बार भी नॉमिनेट हुआ हूँ तो इस बार भी शायद मिल जाए। ये देखिए, ये भी है और ऐसा भी है और वैसा भी है और ये भी है और फ्रिल्स भी, आज मैं बड़ी फ्रीली बनी हुई हूँ। इट्स अ रेट्रो लुक। आज परफॉर्मेंस है, वो क्या है वो आपको देखकर ही पता चलेगा, बट आई एम ऑल ड्रेस्ड अप और आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए हाजिर हूँ। जी, शो में को भी नॉमिनेशन मिले हैं, हम चारों को भी नॉमिनेशन मिले हैं, डायरेक्टर को भी मिला, काफ़ी सारे नॉमिनेशन हैं और उम्मीदें हैं कि लगभग सभी लेकर चले जाएंगे। भाभी जी घर पे हैं, को मैक्सिमम अवार्ड्स मिले, बस यही एक्सपेक्टेशन है और जस्ट फिंगर्स क्रॉस एंड होपिंग फॉर द बेस्ट। डेफिनेटली अवार्ड एक्सपेक्ट कर रहे हैं बिल्कुल नहीं, बट आई एम रियली हैप्पी दैट वी बीन नॉमिनेटेड एंड अच्छा लगता है अवार्ड। इट्स वेरी मोटिवेटिंग फॉर एन एक्टर, स्पेशली व्हेन इट इज़ ऑल अक्रॉस अलग अलग चैनल्स हैं। मुझे ज़्यादा खुशी है कि बहुत लोगों से मिलना होगा क्योंकि हम अक्सर सेट पे एक ही यूनिट में काम करते हैं, बट अलग मेरे बहुत से दोस्तों से मिलना नहीं होता, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ नाइस इवनिंग। वेल, मैंने गोल्ड अवार्ड्स 2 बारी होस्ट किया है, तो दोनों अपॉर्चुनिटीज़ में मैंने गोल्ड नहीं पहना था बिकॉज आई हैड टू बी ऑन स्टेज एंड आई थॉट इट वुड बी अ लिटिल लाउड। सो आज मैंने डिसाइड किया कि आज मैं गोल्ड अवार्ड्स के लिए गोल्ड पहन के आऊँगी बिकॉज आई फील वेरी क्लोज टू दिस पर्टिकुलर अवार्ड, क्योंकि विकास दोस्त हैं एंड ही पुट्स अ लॉट ऑफ हार्ट इन टू दिस शो। So I'm very happy that I'm here today just to watch. बस जो बेस्ट हो उसको मिले, जो डिज़र्व करता है उसको मिले और सच का साथ दे वो जो कास्टिंग करने वाले रहते हैं वो। बाजी आप तो जानते ही है। फिर I'm wearing an outfit from Rippy and थोड़ा सा अलग है कलर। यूजुअली आप सब जानते हो मैं बहुत ज़्यादा डीप कलर्स पहनती हूँ, आज थोड़ा सा सटल एंड थोड़ा सा आइस ब्लू कलर मैंने चुना है। Gold Award, it's like family. मतलब Vikas is a very close friend, so I really like being a part of this. Of course, 10 years complete हो रहे हैं, so congratulations to the entire team of Golds. Looking forward because I have a performance tonight, and also I'm nominated, so definitely looking forward for that. Yes, of course, enjoying the break. नागिन 3 के बारे में अभी मुझे कुछ नहीं पता ऑनेस्टली,
बट येस एज ऑफ नाउ नागिन 2 के बाद जो मुझे अभी ब्रेक मिला है, आई एम डेफिनेटली एंजॉयिंग इट. थोड़ा सा रिलैक्स मोड में हूँ मैं. अभी दिस वाज माय ओनली ब्रेक. अभी से फ्रॉम टुमारो डे आफ्टर आई रिज्यूम शूट अगेन एंड आई डोंट लाइक टू टॉक टू मच बट आई एम इन गोल्ड and I'll be rejoining the rest of the cast. Well, it's an outfit by Nikita Tandon and styled by one of my favorites, Ankita. She's a darling. And yeah, that's about it. आज मुझे ये पता था कि वारिस की अम्बा नहीं लगना है फॉर श्योर, और थोड़ा सा डिफरेंट लगना है, और गाउन्स बहुत ज़्यादा इन है, सो आई जस्ट थॉट टू बी लिटिल डिफरेंट. कृष्णा इज़ कमिंग एंड कृष्णा अभी एंट्री करेगा, तो मैं थोड़ा सा, मैं नहीं बोलूँगी अभी वो आ रहा है. आप ये न्यूज़ उसी से पूछेगा, और डेफिनेटली यस, मैं बुआ बन गई हूँ और मैं बहुत खुश हूँ. एक्सपेक्टेशंस कि ये है मोहब्बतें सारे हो जाएगा. हम अपनी फैमिली को ये मोहब्बतें को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, और आई होप कि यशिमा और पापा और जितने भी हमारे मोहब्बतें और उन दोनों की परफॉर्मेंस है, सो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर दैट. और बहुत सारी बातें हो रही थी सेट पे उनके परफॉर्मेंस को लेके, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट परफॉर्मेंस. नॉमिनेशन है और आई थिंक गोल्ड का 10वां साल है. मैं पिछले 10 साल से मैं गोल्ड से एसोसिएटेड रहा हूँ. बहुत ही सडनली बहुत ही सीनियर जैसा फील हो रहा है, बट आई थिंक सिर्फ मुझे 10 साल ही हुए इंडस्ट्री में, बट आई थिंक इट्स नाइस. विकास इज़ मोर लाइक अ फैमिली. एंड मुझे याद है पहला जो गोल्ड हुआ था वो मॉरिशस में हुआ था, जो मुझे पहला अवार्ड जो मिला था दुल्हन में मिला था, बेस्ट डेब्यू अवार्ड. सो इस बार भी नॉमिनेशन है. सो या 10 years इट्स अ लॉन्ग टाइम. मुझे बहुत पहले से जब मुझे पता चला कि गोल्ड अवार्ड्स आने वाले हैं, बिकॉज इज़ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, तो मैंने कहा मुझे जाना ही जाना है. एंड नॉमिनेशन भी था, तो मुझे समझ में नहीं रहा था कि क्या पहनूं. बस जस्ट मैंने डिज़ाइनर को बोला कि मुझे इस टाइप का, मैंने कहीं देखा हुआ था ये ड्रेस, बस मुझे ऐसा लगा कि मुझे यही पहनना है. मैंने उसे बोला मुझे प्लीज़ डिट्टो ऐसे ही बना के देना, एंड या टचवुड उसने बना के दिया. इट्स लुकिंग गुड. Well, I'm gonna enjoy his performance. That's why I'm here. It's like I'm performing for the first time. You have to come, and I'm here for him and to cheer him up. And yeah, मुझे ये है कि are you excited to know what? Like I am, as an audience, I'm gonna relax and enjoy. मेरा नाम एक्चुअली नॉमिनेट हुआ है बेस्ट एक्टर के लिए, तो आई होप कि वो मिल जाए. अगर नहीं मिला ज़बरदस्ती लेके मार जाऊंगा. Well, I'm nominated today for the fittest actor female, so yeah, I think full credit for my styling goes to my husband today. Yeah, I think so. I think more than that. I think she, thankfully, I'm lucky that she always has a body which she can carry off anything. So yeah, we tried to style her in a different way today, and I think she's looking gorgeous. She's the most stunning woman around. That's what I think. We have a lot of expectations from the evening. ये रिश्ता क्या कहलाता है is nominated for a lot of awards, and keeping our fingers crossed. और हम बहुत दिल से यहाँ आए कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ तो वापस लेकर जाएंगे. Usually everybody has seen me in long hair because I have long hair, and you know for your I just wanted to do something different. So I love this hairstyle. So मैंने कुछ different किया. The dress I'm wearing a scuba Georgette tuxedo, and which is yes very different, and red मैंने कभी पहना नहीं है, and I'm wearing red. I'm very happy that I'm just loving it with black heels and silver jewelry. I really took a lot of time to do this, but yeah, dress और सब पहनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा. प्लीज़ डोंट मिस मी. गोल्ड अवार्ड्स में मेरा परफॉर्मेंस है, तो आपको मुझे मिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं हमेशा हर जगह दिखती ही रहती हूँ. बहुत ही खूबसूरत सी बीवी साथ में है, और साथ में उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत सी एक्सपेक्टेशन है. 2 नॉमिनेशन है. आई एम श्योर एक तो लेकर जाऊँगा घर. बाकी देखिए एक ट्रॉफी है, साथ में एक और कम से कम चाहता हूँ. एंड आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी अ लवली नाइट नाउ. बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जैसे कि हर साल इट्स गेटिंग बेटर एंड बिगर. तो ऑब्वियसली अभी इस साल तो मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे एक्ट्स भी हैं, और आई थिंक भारती मेरी फेवरेट होस्ट कर रही है. सो देयर विल बी लॉट ऑफ लाफ्टर राइट ऑल्सो एज वेल एज great performance. So I'm really looking forward. Yeah, I'm looking forward to all the performances. Actually मैं इंडिया में थी नहीं, I was working in Indonesia, so मुझे actually पता नहीं है what is happening, which are the new shows, which are the new actors. I'm waiting to go inside and see. आज के इवेंट को हम बस एंजॉय करने आए हैं, and yes, we are here to cheer our friends and our colleagues. हम दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि आज आई थिंक हमारा पहला अवार्ड पे लाइव परफॉर्मेंस है. सो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ यार, और ज्योति भी एक्साइटेड है. We both are very excited. परफॉर्म कर रहे हैं, तो
excitement is at its part. Yeah. Well, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैंने गोल्ड अवार्ड्स का ओपनिंग एक्ट किया है एंड थैंकफुली इट वेंट वेल एंड मेरा नॉमिनेशन भी है, सो आई एम रियली एक्साइटेड एंड गोल्ड अवार्ड्स फॉर मी इज़ माई मोस्ट फेवरेट अवार्ड्स. मैं इसका एक्चुअली बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ, सो आई कांट वेट टू गो इनसाइड. I believe कि people who are really good, they should get the awards, and I'm being nominated in one category, but still I think people who have done the best, they should get it. I think all people who are working in our industry, all the shows, everybody is working very hard. Rest of the people, I think there is a voting system. The people who voted for particular people in all the categories, they'll get the award. So I think the audience is giving their view. I want him to win the award. Full dhamal gold glittering is of course, as the name suggests, gold awards. So yeah, it is going to be very exciting and I'm looking forward to it. यार मैं यार वैसे भी बहुत ही आई एम अ वेरी स्ट्रेस फ्री पर्सन. मतलब है ना, मैं हमेशा अपने अकाउंट्स भी मैं हैंडल नहीं करता हूँ. आई प्रेफर कि ये सब झंझट मेरे अकाउंटेंट्स और ये सब ही करे. सो मैं ये सब स्ट्रेस कभी लिया ही नहीं हूँ लाइफ में कि सर्विस टैक्स, GST ये वो करके. आई थिंक अगर समझो गवर्नमेंट ने कुछ सोचा है तो ढंग के कुछ सोच समझ कर ही फैसला लिया होगा. तो बस अभी हम इसका कुछ विरोध तो कर नहीं सकते यार. ऐसा भी नहीं कि GST बिना भरे हम काम कर सकते. तो rather than cribbing, just enjoy and जो भी है उसे साथ में लेकर चलो. My accountant said that देना है तो सबको देना है. इफ़ इट इज़ गुड फॉर पीपल इट विल बी गुड फॉर यू. सो आपको अलग से टेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मैं अकेली क्यों हाहाकार करूँ. कुछ भी हो रहा है बिफोर इवन अंडरस्टैंडिंग वेदर ये अच्छा है कि बुरा है, मतलब लोगों को एक वो हो गया कि पैनिक करो, पहले पैनिक कर लो. So let's see. I mean, if we have chosen Modi to become our government, तो उन पे थोड़ा सा ट्रस्ट तो मुझे लगता है करना पड़ेगा बिफोर सर पीटो. फ्रैंकली ये टैक्स वैक्स तो समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भी CA से बात करते हैं वो यही कहते हैं कि आगे जाके ये GST जो है वो देश के लिए और हम सब के लिए अच्छा होने वाला है. थोड़ा सा वक्त लगेगा, शायद 1-8 साल लगेगा इसको समझते और थोड़ा सा रूटीन में आते हुए. लेकिन एक बार अगर डे टू डे लाइफ में ये आ जाएगा तो हमारे देश के लिए और सबके लिए बहुत अच्छा रहेगा. भाई GST ने ऑनेस्टली GST के बारे में मुझे पिछले कुछ 5-6 महीने से पता था कि वो लागू होगा. पहले वो कह रहे थे कि जून जुलाई तक आ ही जाएगा. सो अब फाइनली 18% में सर जी ने लॉक कर दिया. और ऑनेस्टली कहूँ तो जब ये GST प्रपोजल आया था और जब इसकी बातें चल रही थी तो हमें बताया गया था कि जितने भी सारे आपके टैक्सेस हैं उनको माइनस करके रिड्यूल करके एक टैक्स बनाया जाएगा जो हमारे लिए शायद फ़ायदेमंद होगा. आई एम सॉरी, लेकिन अब तक तो मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा हमारी नॉर्मल पब्लिक के लिए. एंड आई जस्ट होप कि ओवर टाइम ये फ़ायदेमंद हो. बट फिलहाल इन दी इमीडिएट व्यू GST बिल्कुल फ़ायदेमंद नज़र नहीं आ रहा क्योंकि सब कुछ बहुत महंगा हो गया है. सच देखा जाए तो पूरे हिंदुस्तान में हमें पता है कि हमारी जो आबादी है उसके सामने कितने % लोग टैक्स एक्चुअल जमा करते हैं. तो देश कैसे चलेगा अगर हर कोई टैक्स की चोरी करेगा या टैक्स नहीं भरेगा. हम प्रशासन को गाली देते हैं कि भाई ये, पर प्रशासन आगे करेगा क्या. अगर सब लोग ईमानदारी से टैक्स भरेंगे तो डेफिनेटली प्रशासन कुछ कर सकता है. लेकिन आई थिंक परसेंटेज वाइज कुछ 2 या 3% पूरे हमारी जो आबादी है उसमें से टैक्स भरती है. तो ऐसे कैसे देश चल सकता है. GST थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मामला है हम अभी सभी के लिए. चीज़ें अभी धीरे धीरे जब परतें खुलेंगी तो पता चलेगा कि दरअसल है क्या. ये एक पॉलिसी है यार, धीरे धीरे जनता का पैसा हड़पने की. पहले नोटबंदी, उसके बाद फिर GST, फिर पता नहीं कौन सी टी आएगी. तो ये आई थिंक सो हमारे प्रधानमंत्री खुद कह रहे थे पहले कि ये कभी अच्छी बात नहीं, ये लागू नहीं हो सकता. और अब कह रहे हैं कि ये बेस्ट चीज़ है. ये जनता के हाथ में, जनता जवाब नहीं मांगती है. यूनाइट होगी और जवाब मांगेगी, रोड पे निकलेगी तो फिर होगा. वरना अब तो व्यापारी जो सरकार का, प्रशासन का विरोध करते हैं उनको भी पुलिस लकड़ियों से, लाठियों से मारती है. तो मतलब अब तो आवाज़ उठाना भी डेंजरस है. हमारा भलाई होगा. आई एम श्योर बहुत सारे लोग काफ़ी नाराज़ है बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लग गए हैं. इवन एवरीथिंग सो आई एम श्योर अगर गवर्नमेंट ने हमारे अच्छे के लिए सोचा है सो इट बी फॉर द गुड. सो आई थिंक हमें थोड़ा पेशेंस रखना चाहिए और देखना चाहिए कि हाउ इज़ इट गोइंग. वी शुड हैव सम पेशेंस एंड सी व्हाट्स हैपनिंग.
मैंने तो यही बोला है कि मेरे पर डे के ऊपर GST लगा दे दो। मेरी शॉपिंग छोड़ दो। मेरा स्पा का खर्चा छोड़ दो। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें लाइक It's nice. Of course, you know, initially like how 2000 का जो नोट आया था उसमें प्रॉब्लम हुआ, कैश को लेकर प्रॉब्लम हुआ, तो initially everybody will have problem and later on. But of course, everybody is facing problem. But for that 1-2-3 days, sale was nice. Yeah. I think it's fine, yeah. It's a whole new era that is coming up after demonetization. GSTs come up, and I think we should support anything that comes up. We should not be too critical in the start. Let us see how it goes. Let's wait for the next 6 months, and then we'll see what happens. Yeah, like Mausim said, we should not be so critical in the start. We should wait. I believe in the nation, and I believe in the nation's leader. So I think let's wait some years to see how it is implemented. I think it's fine as long as it is helping the poor people. So जहाँ हम 100 rupees pay करते थे restaurant में, we have to pay probably a little more than that. But it's okay if it is going for a good cause. So I don't see any problem in it, and I think people should take it very positively. जी काफ़ी महंगा हो चुका है सब सामान, रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सब चीज़ें महंगी हो गई है, तो लेकिन इट्स ओके। आई थिंक गवर्नमेंट ने सोच समझ के ही किया होगा, और आई एम श्योर कि गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। I would say it's good for us. It's good for the actors because जो service tax था वो सिर्फ कम कटेगा, so it's good for the actors. So I'm happy. Yesterday, I was at the US consulate, the embassy, to get a visa for me traveling for IPA, and there's a girl there from Ahmedabad, Videja. She's in college. Little girl, little grown-up girl. She was going to Berkeley in the US, and she just started talking about DMD and how they should rerun it. And then I ended up asking her what she's studying, and she's studying law, and she's studying mergers between the US and India, and how merger laws work, how everything works for everyone. It's just it's like it's a very, very ground zero kind of conversation, which is very nice, which was initiated by her. It was lovely. It's like the beginning of the day, and you're having a conversation with somebody who remembers your fondest memories, and you're talking about that. So it's fun. कहते तो है कि देश के लिए अच्छा है, तो देखते हैं कैसे चलता है। अभी आई थिंक 4 दिन ही हुए हैं, 4 दिन भी पूरे नहीं हुए। सो लेट्स सी, आई थिंक आगे जाके हम सबका फ़ायदा हो और गवर्नमेंट का फ़ायदा हो। आई थिंक that's all we need. See, for actors, it's not much of a difference. We were anyway paying that much only. So as an actor, I don't really, it doesn't bother me. But I think in the longer run, it is a good decision. Hi, this is Moni Roy, and you're watching me on India Forums. Thank you. We hope that you guys had fun to watch your favorite celebrities in a different avatar.